Assalamualaikum everyone. I'm Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's session. As you know, SEO used to have sessions on different topics, whether these are educational opportunities, career counseling, motivation, personal development, and much more. Today's session is related to one of the exchange programs for the students of ninth and matriculation, known as a YES program. And we have a guest speaker, Mr. Aves Ahmed. Welcome, Aves. He's an alumni of YES 16. He had been to US in 2018 and 19 and currently pursuing bachelor's in computer science from Sakaraibi University. So he will be guiding you on how to apply for this program, what are the selection criterias, and what is the process, all that. So without wasting further more time, let's directly dive into today's session. So it's over to you, Aves. Thank you, Karan. I hope everybody is doing well. So, yes, as Karan mentioned, I hope I'm audible. Am I audible to everybody? Yes, Like, yes, give you me are a thumbs audible. up. Okay, okay, great. Okay, so as Karan mentioned about me, that I have been to the US on exchange again. So, this is basically known as Youth Exchange and a Study Program, known as YES program. We'll be diving into the yes program very shortly कि ये होता क्या है. I code switch करने का मतलब ये होता है कि of course मैं English में बात करूंगा और उर्दू में बात करूंगा, so that my message reaches to all of you quite well. So let's begin. I'm going to share my screen with you guys. So here we go. Okay. Okay. So before we dive into yes program, does anyone of you has any idea what yes program is all about? Like, yes program होता क्या है? Okay, so is it just one on like, do you want me to speak or will there be cross-sectional conversation? I want you to please finish first. Then we will have question answer session. Then you can Sure, interact with our audience. sure. Okay, so this is basically YES program, which stands for Youth Exchange and Study Program. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यूथ है हमारे पास, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स एजिंग बिटवीन 15 टू 16, 15 टू 17 ईयर्स ऑफ एज, जो कि अभी का क्राइटेरिया है इनका, एंड द स्टूडेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन आइदर 9th और 10th ग्रेड ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2024 टू 25. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इज वेरी सिंपल. वो ये है कि यस प्रोग्राम होता क्यों है. सी, अब यहाँ पर इसका जो मेन मोटिव है, ये स्टार्ट हुआ था. आई गो बैक इन हिस्ट्री. इट स्टार्टेड बैक इन द ईयर 2002, जो पहली बैच गई थी. और ये स्टार्ट हुआ था, इफ यू फॉलो हिस्ट्री का बिट, 9/11 एक इवेंट हुआ था, ट्रेजिक इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ द यूएस. वो ये हुआ था कि कुछ ट्विन टावर्स दे वर अटैक, और फिर उसके बाद ये इनिशिएटिव लिया गया था सेनेटर कैनेडी लुगर. इसका पूरा नाम है KL यस प्रोग्राम. सो सेनेटर कैनेडी एंड लुगर, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था. व्हाई? इट्स बिकॉज the sole purpose of this program is to bridge the gap between the people of US and Pakistan. It is not only restricted to Pakistan, but mainly like in the Middle East और कुछ African countries भी हैं हमारे पास. So mainly it focuses on the Asia and of course Africa as well. अब ये हमारे पास क्या है? इट्स एन एनुअल एक्सचेंज योर अपॉर्चुनिटी. एनुअल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इट्स बिकॉज कि राइट आफ्टर 2002 अप अंटिल नाउ, इवन कोविड में भी इनका एक बैच गया था. ऑफ कोर्स वो बैच जो था हमारे पास, वो लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था, द वे वी आर डूइंग राइट नाउ. तो वर्चुअल एक्सचेंज ये उसको हम कहते हैं. अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया, यू अब्रिज द गैप. मतलब आप जो गैप ऑलरेडी क्रिएट हुआ है बिटवीन द पीपल ऑफ यूएस एंड पाकिस्तान, आप उन लोगों के बीच में गैप को अब्रिज करते हो, मतलब खत्म करते हो. तो कैसे करते हो? यू गो देयर, यू स्टडी इन एन अमेरिकन हाई स्कूल. अगर आप 9th ग्रेड में हो करंटली अभी, तो वहां पर यूएस में जाकर आप 10th में आ जाओगे. और अगर आप 10th में हो इन पाकिस्तान राइट नाउ, आप जब वहां पर जाओगे इन द यूएस, फिर आप
फर्स्ट ईयर में हो गए, मतलब 11th ग्रेड में हो गए। और ये सारा प्रोग्राम जितना भी है ये स्पॉन्सर्ड है बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। आपकी ना सिंध गवर्नमेंट ना पाकिस्तान गवर्नमेंट, नन ऑफ देम आर पेइंग। ये डायरेक्टली पेड होता है फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। Uh, uh, before we dig further, I would like to highlight the eligibility criteria of yes, I mean I've already mentioned it. तो अगर आपको एज का इशू आ रहा है तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू लाइक कॉन्फ़िगर इट कि अगर आप पैदा हुए हो 15 अगस्त 2008 से लेकर 15 अगस्त 2010 के बीच में अगर आप पैदा हुए हो देन यू आर गुड टू गो, आप एलिजिबल हो इसमें। अच्छा, दूसरा यहाँ पर आई वुड लाइक टू, क्योंकि आज मॉर्निंग में भी एक और सेशन था वो पब्लिक स्कूल दादू वालों का, तो दे हैड वन कॉमन क्वेश्चन। वो ये था कि मतलब अगर हम अभी हमारी एज 14 ईयर्स ऑफ एज है तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। यस, बट द कंडीशन इज कि आपकी एज 15 ईयर्स होनी चाहिए अंटिल 15 अगस्त 2025, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी एक अनफॉर्चुनेटली बहुत एक गलत चीज, एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो चुका है हमारे पास के आई मीन आई गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट लाइक दीज थिंग्स के सर मेरी जो बे फॉर्म में है वो ये डेट ऑफ ईयर है बट मेरी ओरिजिनल ये है। मतलब व्हाट डज दैट मीन, लाइक इज इट पॉसिबल कि एक इंसान दो बार पैदा हो? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। ठीक है, तो फिर आप अपनी सबसे पहली बात ये डॉक्यूमेंट्स ठीक करो। आप एक बार ही पैदा हुए हो तो आपकी डेट ऑफ ईयर भी एक ही बार होना चाहिए। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट में कोई क्लैश नहीं होना चाहिए। नाउ दैट बीइंग सेड, आई ऑलरेडी मेंशन कि आपकी नाइन्थ और टेंथ ग्रेड आप लाइक एकेडमिक 2024-25 से नाइन्थ और टेंथ ग्रेड में होनी चाहिए। फिर उसके बाद फाइनली वी हैव दिस इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि आपके जो ग्रेड्स होने चाहिए इन कोर सब्जेक्ट्स, इट मींस कि आपके साइंस सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये पांच सब्जेक्ट्स हैं आपके। और फिर ऑफकोर्स इंग्लिश, ये छह सब्जेक्ट्स में आपके 60% स्कोर होना चाहिए एनुअल एग्जाम्स में। अगर आपका स्कोर इससे लेस है इन इन मिड टर्म एग्जाम्स यू आर गुड टू गो, बट you need to have at least 60% score in your final examinations in the subjects that I just mentioned. Of course, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अब वो हमारे पास कौन से हैं कि लास्ट 3 इयर्स मार्कशीट। अब ये कौन सी है? अब लेट्स जस्ट से कि अगर आप नाइन्थ ग्रेड में हो अभी, तो फिर आप क्या करोगे कि आपके सिक्स, सेवन एंड एट के जो आपके एनुअल एग्जाम्स थे अपने स्कूल के, उनकी मार्कशीट्स होनी चाहिए, नॉट ओरिजिनल, उनकी फोटोकॉपी दैट मस्ट बी अटेस्टेड बाय द रेलेवेंट अथॉरिटी। फिर ऑफकोर्स नादरा के बे फॉर्म है, और फिर आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं। तो अगर आप यस अगर आप टेंथ ग्रेड में हो तो फिर आपके एट, यस सॉरी, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ ग्रेड के आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये आता है कि पीपल ऑफ कोर्स सिंस वी आर फ्रॉम सिंध बोर्ड, तो हमारी जो मार्कशीट्स होती है नाइन्थ की, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप अभी टेंथ में इनरोल्ड हो तो आप कौन सी मार्कशीट यहाँ पर दोगे? जो आपका एनुअल एग्जाम हुआ था अपने स्कूल में बोर्ड से पहले, आप उसकी यहाँ पर मार्कशीट दोगे। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स कॉस्ट क्या है इस यस प्रोग्राम की? इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका वीजा से लेकर योर फ्लाइट टू यूएस, एंड देन आपके वहां पर पूरा 10 मंथ्स का आपका स्टे, और फिर आपका वापस पाकिस्तान में लैंडिंग। तो ये पूरा प्रोग्राम जितना भी है फ्री ऑफ कॉस्ट। यू वोंट बी आस्क्ड टू पे अ सिंगल penny फॉर दैट, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। Though you will be paid $200 stipend. अब $200, it's not Pakistani rupees, like $200 मतलब does not mean 200 rupees Pakistani. $200 is a good amount, ठीक है, for a student to spend. तो मंथली स्टाइपेंड मीन्स कि आपको हर मंथ आपकी पॉकेट मनी मिलेगी $200। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक वीडियो है जो एक अलमनाई की है। ही वाज इन हिज एक्सचेंज हियर, और वहां पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने उससे ये इंटरव्यू लिया था। वी विल पुल इट अप फर्दर, आगे जाके थोड़ा हम इसको पुल इट अप करेंगे। उससे पहले
let's, I mean, since it's just me speaking, so I don't think I must be asking this question. I want to see my journey. So anyway, we'll just go and look at my journey, how my journey went. Uh, it's me. I know I was in my adolescent years. तो उसमें ये हुआ था कि it is the picture of Frankfurt Airport, Germany में हम लोग बैठे हुए थे. Of course, this yes T-shirt आपको मिलती है. And then these two girls, they were from my batch. हमारे साथ ये गई थी. तो दिस वाज आवर सेकंड ले ओवर. मतलब आप यहाँ से सबसे पहले आप कराची से आप जाते हो दुबई. दुबई से देन यू गो टू फ्रैंकफर्ट. फ्रैंकफर्ट के बाद यू फाइनली टच डाउन इन द यूएस. फिर उसके बाद अब काफी ये समझते हैं कि यार ये राउंड ट्रिप है. मतलब हम ना घूमने के लिए सिर्फ जा रहे हैं. इट्स नॉट घूमना आपका. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है आपकी, जो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था, इट्स कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम. उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब वेरी सिंपल है यार. आप अपने कंट्री के एक यूथ एम्बेसडर होते हो. मतलब कि आप जब पाकिस्तान, जब यूएस जाते हो, तो फिर आप अपने कंट्री के वहां पर एम्बेसडर होते हो. लाइक आप अपने कंट्री को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हो. अब इसका मतलब क्या है? Yes. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी स्टीरियोटाइप्स मैंने ऑलरेडी बोले हुए थे, स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या है? स्टीरियोटाइप्स का मतलब ये है कि जो भी मिसकंसेप्शंस हैं बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ द यूएस, वो आप खत्म करते हो वहां पर जाके. अब ये मेरी क्लास थी. इट वाज वन ऑफ माय क्लासेस. मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने से पहले पूछा था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान? एंड यू नो व्हाट आंसर्स डिड आई गेट? आई वाज टोल्ड कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, यू गाइस आर एक्सट्रीमिस्ट, you guys ride on camels. Of course, I hope you guys you guys get like finalists in the yes. आप ये बहुत ज्यादा सुनोगे कि you do not have planes, like you just ride on camels and whatnot. कोई टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास. तो like you get to hear this a lot. तो यार मेरी जान, मैं यूएस में अभी नहीं हूँ. मैं अभी पाकिस्तान में बैठा हूँ. ठीक है, ये मैं एक्सचेंज ईयर तो गया हूँ, तो उसके बारे में बता रहा हूँ. तो खैर, अभी जब यहाँ पर मैं गया, आई ऑफ कोर्स डिलीवर्ड द प्रेजेंटेशंस. आई डिलीवर्ड ऑलमोस्ट लाइक 30 प्रेजेंटेशंस. वंस आई वाज डन विद द प्रेजेंटेशन, जब मेरी प्रेजेंटेशन हो गई थी सारी, देन आई आस्क्ड व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान राइट नाउ. एंड आई गॉट द आंसर कि नाउ वी वांट टू विजिट पाकिस्तान. हम पाकिस्तान घूमना चाहते हैं. व्हेन आई हर्ड दैट आंसर, आई वाज लाइक आई हैव मेड इट. लाइक मैंने अपनी जॉब फुलफिल कर दी है. जो मैंने करना था वो मैं कर चुका हूँ. वाई? इट्स बिकॉज मेरा यही सोल पर्पस था कि मैंने यहाँ पे पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को पोर्ट्रे करना है. देन ऑफ कोर्स लाइक वी हैव, अच्छा, आई से दिस क्वाइट अ लॉट कि सिंस वी गाइस आर फ्रॉम सिंध, और ऊपर से हम फिर सखर के एरिया के, सखर रीजन के हैं आई से. तो हमारे पास तो सर्दी बहुत ज्यादा होती है. लाइक हम ठंडे इलाके के हैं और वी गेट टू सी स्नोफॉल अ लॉट. तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना हमारे पास. तो इट वाज, आई वाज प्लेस नॉर्थ कैरोलिना, ये एक स्टेट है यूएस की. वहां पर इट वाज नाइट, और मेरी होस्ट फैमिली ने मुझे बताया कि अगर वी आर गोइंग टू हैव स्नोफॉल एट नाइट. एंड बिलीव यू मी, लाइक आई कुड नॉट स्लीप that night because I was eagerly waiting for that snowfall just to see it. And the morning, like I wake up, of course I slept after Fajr, तो उसके बाद फिर जब मैं उठा, it was all snowy, like the lawn, it had just snowfall all around it. So we went out, or we played the baseball. So yes, I mean, once it has snowed, so why won't you play baseball? Okay, these people right here, जब आप 10 महीने के लिए अपने मुल्क से जाते हो ना किसी और मुल्क में, तो one thing that you surely miss about your country is your cuisine, is your food, right? आप अपने फूड को बहुत ज्यादा मिस कर रहे होते हो. अब the place where we're standing right now, it's an Indian restaurant, और यहाँ पर बुफे लगा हुआ था. तो आई आस्क दीज ऑल आर माय कोचेस. लाइक जो मेरा स्पोर्ट्स की जो मेरी क्लास होती थी, ये सब मेरे वहां पर टीचर्स थे, राइट? तो
like I told them, because again, Americans join, they want to experience. They want you to experience American life, and they want to experience your life too. So I was like, "Yeah, have you ever tasted Indian cuisine? Because Indian and Pakistani cuisine are almost the same. Okay? So they were like, no. I was like, okay, like there's a restaurant nearby our school, so why don't we just go there? So right after our school, we all sat in a car. I mean, of course, different cars. Then we left for that place, and we took a photo. और फिर उसके बाद when I asked their reviews, they loved it. So of course, like जब आप जा रहे हो, आपने पूरा उनको ना बताना होता है कि आपका कल्चर कैसा है. Of course, मैं कुक भी थोड़ा करता था, but of course, like इतने लोगों के लिए I cannot cook. So the best idea that I found was to just take them out to a restaurant and then let them decide themselves. And they love the food because Pakistani food is very nice. अब ये है इस पिक्चर को लगाने का मकसद क्या था. इस पिक्चर को लगाने का मकसद ये था कि शी इज फ्रॉम बांग्लादेश, शी इज अ बंगाली गर्ल, एंड देन ही इज फ्रॉम उज्बेकिस्तान. इसका मकसद ये था कि once you're on your exchange here, it's not only you and and Americans, but दूसरे भी होते हैं, दूसरे कंट्रीज के भी एम्बेसडर्स आए हुए होते हैं. एम्बेसडर्स का मतलब गेस्ट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं. तो यू गेट टू हैंग अलॉट, मतलब बहुत ज्यादा आप हैंग आउट करते हो इनके साथ. इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि अब हम पाकिस्तानी, राइट? अब मेरे पास बांग्लादेश का एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड आ गया थ्रू दिस लवली लेडी, और उज्बेकिस्तान का थ्रू दिस लवली गाय. एंड ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम दे हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम मी. तो ये है. उसके बाद ये इट इज माय फेवरेट पिक्चर ऑफ आउट ऑफ माय एंटायर exchange here. Why? It's because के जैसे अब यहाँ पर खैर हमारे जैसे एडमिन होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जैसे होता है किसी भी उसका स्कूल का. तो ये काइंड ऑफ एडमिन थी. ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में ये काम करती थी मिस हेदर एंड लवली लेडी. she is the one, like of course आपके different placement organizations होती हैं, because I already mentioned कि you get to live with an American host family. तो ये लोग होते हैं कि जो आपको American host family ढूंढ के देते हैं. And of course, if you are in the US, then why not to take a picture with an American flag? And of course, he was basically depicting to be an American soldier. So, an American soldier with a Pakistani guy behind an American flag, not common, of course. अगर हम हिस्ट्री देखें and everything, तो ये कॉमन चीज नहीं है, but yes, why not? Okay. इस पिक्चर को लगाने का मकसद भी यही था. आई थिंक यू गाइस probably recognize this guy again from Uzbekistan. अब now these all they are all exchange students, और ये सब we were out, और like we were hanging out, और यही है पर्पज आपका कि आप जब वहां पर जा रहे हो, you get to meet a lot of friends, lot of people, और आप लर्न करते हो एक दूसरे से, उन्हें सिखाते, you teach and learn, दोनों चीजें आप कर रहे होते हैं एक्सचेंज ईयर में. Now, this is my group. Uh, अब हम it's a cafe where we are sitting, और हमारा क्या पर्पस था, लाइक आई हैड ऑलरेडी ज्वाइंड ए क्लब विद द नेम ऑफ MUN क्लब. और हम क्या करते थे कि every Thursday, like sorry, every second Thursday, हर मंथ का हमारी मीटिंग होती थी. एंड देन राइट आफ्टर दैट मीटिंग, it was like I'll say a kilometer walk from our school to that cafe, and we used to take that walk. हम वो वॉक लेते थे अपने स्कूल से इस कैफे तक, एंड वी थ्री ऑफ अस, कभी हमारे एक और दोस्त भी होती थी, तो फोर ऑफ अस वी यूज्ड टू सिट टुगेदर, लाइक हैव कॉफी, हैव have some sandwiches, and discuss करते थे. So love experience. Like this guy now, he's in Germany at the moment. ये जर्मनी में है लड़का, और ये शी इज अमेरिकन, ये अभी अमेरिका में है. ये दोनों अमेरिकन हैं, बट ये अभी पढ़ने के लिए जर्मनी गया हुआ है. एंड यस, द लवली पीपल हु होस्टेड मी, और ये इतने ग्रेट लोग थे कि मतलब great people. Karan just mentioned that I'm pursuing computer sciences. It's because of this guy, my host dad. He used to work in IBM. अगर आप में से किसी ने नाम सुना है, IBM,
इट्स ए ह्यूज कंपनी इन द यूएस, ह्यूज कंपनी। ठीक है, और ये किस चीज की कंपनी है, ये हार्डवेयर पहले बनाती थी, नाउ दे आर इनटू सॉफ्टवेयर। तो जो वॉटसन, अगर आपने किसी ने सुना है कंप्यूटर, तो ये आईबीएम ने बनाया था। ही यूज्ड टू वर्क फॉर आईबीएम, एंड ऑफ कोर्स आई हैड द प्रिविलेज टू बी इन आईबीएम कैंपस। अब कैंपस मैं ये बोल रहा हूँ, जो पूरी उनकी विसिनिटी थी, वो इजीली, आईबीएस तो बहुत बड़ी है, आईबीएस के करीब कुछ भी नहीं है, आईबीएस तो बहुत बड़ा, सिर्फ उसकी विसिनिटी थी, लाइक आईबीएम का वो पूरा कैंपस था, जिसमें सब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे एंड एवरीथिंग। तो व्हेन ही टुक मी देयर, इट वाज अमेजिंग, लाइक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। एंड देन ऑफ कोर्स माय लवली होस्ट मॉम। अब ये रिलेशन आपका कैसा बनता है? आपका रिलेशन इतना प्यारा बन जाता है कि द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स के I was leaving for Karachi and I texted him one at night. रात को 1 बजे मैंने उन्हें टेक्स्ट किया, and believe you me, like he replied me on that very minute. Like मैंने जैसे अगर 1 बजे मैसेज किया था, he replied me in that minute. और they were like कि if you need any kind of help, assisting, like जो जिस बारे में बात कर रहा था, उन्होंने बोला we are there for you. तो लवली एक्सपीरियंस, मतलब इतना प्यारा एक्सपीरियंस था कि when I was leaving for Pakistan, पहले मैं अपनी स्टेट से डीसी गया था, वॉशिंगटन डीसी। माय होस्ट मॉम, शी वाज क्राइंग, लाइक ये रो रही थी। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लीविंग फ्रॉम पाकिस्तान, जब मैं व्हेन आई वाज फ्लाइंग टू द यूएस, तो मेरी अम्मी जो है पाकिस्तानी, शी वाज क्राइंग। एंड देन व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम द यूएस, तो मेरी जो अम्मी है अमेरिका वाली, तो वो रो रही थी। तो इट मीन्स कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, और ये एवर लास्टिंग बॉन्ड होता है आपका। So it's a great opportunity. So, any questions? Karan, are we taking questions right now, or do you want me to pull up that application, and then I may explain them the form thing, and then they can come up with the questions? What are we doing? As you wish, Avis. If you want, you can start about the application process, or if you want to entertain the question, we can open floor for them as well. I mean, let's go for questions. Let's go for questions. Sure. Okay, participants, if Yeah. anyone of you wants to ask question, please raise your hand, or you can type your questions in the chat box as well. Floor is open for you. Please come up with your questions so that we can move to next thing. Okay, I have already received a question in the chat box. It says कि eligible criteria. Those eligibility criteria is very simple. Yes, yes, now I'm telling you. Eligibility criteria is very simple. वो ये है कि let me just pull that slide for you guys. Yes, this is the eligibility criteria. Ali Faiz, we are going. Just wait. Like पहले मैं जरा आंसर कर दूं इनके ये क्वेश्चन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल। वो ये है कि you must be born between 15th August 2008 to 15th August 2010। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एज है, मैं बात कर रहा हूँ 15 अगस्त 2025 की, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। जो आपकी एज है, आपकी एज एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, और 17 से यू मस्ट नॉट बी एक्सीडिंग 17 ईयर्स ऑफ एज, नंबर वन। नंबर टू नंबर टू हमारे पास ये है कि आप जो करंट ईयर है, अभी एकेडमिक ईयर है 2024-25 तक, यू मस्ट बी एनरोल्ड इन नाइन्थ और 10th ग्रेड। आप नाइन्थ में हो या 10th ग्रेड में हो। थर्ड है हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, आपके यहाँ पर लिखा है मेजर एंड कोर सब्जेक्ट, मतलब साइंस सब्जेक्ट्स कौन से? मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इफ यू स्टडी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड देन इंग्लिश। तो दीज आर 6 सब्जेक्ट्स के जिनमें आपका स्कोर 60% होना चाहिए। किस चीज में? एनुअल एग्जामिनेशन में। जो आपके एनुअल एग्जाम्स होते हैं आपकी स्कूल की, उसमें आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। Now that being said, here's another question: Who can apply for this program on the government school? Okay, uh, इसमें ये है कि uh, आप अप्लाई कर सकते हो। इट डज नॉट मैटर कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल वाले जाएंगे या प्राइवेट स्कूल वाले, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। अगर आप अपने उसमें हो,
अगर आप ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, अगर आपकी एज 15 या 17 के बीच में है, अगर आप 9th और 10th में इनरोल्ड हो, और अगर आपके 60% से ज्यादा मार्क्स हैं, यू आर गुड टू गो। दैट डज नॉट मैटर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो। देन सैयद अमाद हैज अ क्वेश्चन कि सीट्स कितनी होती हैं। दोस्त, इसमें सीट्स नहीं होती हैं। मतलब ये है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है डिफरेंटेड कि मतलब आप इतने सीट्स लोगे इतने नहीं, मगर यस, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बैच जाती है, जो एवरेज निकलता है, लाइक आज तक जो एवरेज निकली है, वो अप्रोक्सीमेटली लाइक 75-70 के बीच में जाती है बैच। और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इफ आई एम 15 कैन आई अप्लाई? यस, यस, अगर आप 15 के हो, आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज स्कॉलरशिप इज एन, ऑफ कोर्स। देखिए ना, अब स्कॉलरशिप है, और बहुत लाइक अगर मैं ये कहूँ कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव और सबसे एक्सपेंसिव स्कॉलरशिप है अगर दुनिया में, लाइक वन ऑफ द मोस्ट बोल रहा हूँ, अगर कोई है तो इट इज वन ऑफ देम, दैट्स फॉर श्योर। तो ऑफ कोर्स अब इतनी बड़ी स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो वो टेस्ट तो होगा। तो टेस्ट में, अगेन, टेस्ट में कुछ भी नहीं होता, मुश्किल ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है आपको इंग्लिश लिसनिंग, आप इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, देन यू आर गुड टू गो। अब ईशा अकबर आप पे लिखा है कि अगर आप 15 के हो आप अप्लाई कर सकते हो, yes कर सकते हो, और 14 के, आप 14 के ड्यूरिंग, अभी अगर इस टाइम पर अगर आप 14 के हो, और अगर आप 15 अगस्त 2025 तक, मतलब नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 15 अगस्त 2025 तक अगर आप 15 ईयर्स के हो, यू आर गुड टू गो, आप अप्लाई कर सकते हो। हमारा केपी के से एक स्टूडेंट जाता है एवरी ईयर। नहीं 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 दोस्त, ये किसने बोला केपी के से एक एक स्टूडेंट जाता है मेरे भाई? ऐसे नहीं होता, केपी के से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं, मेरी अपनी बैच के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे, वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट, देयर इज नो क्राइटेरिया डिफाइंड के जी सन से इतने रहेंगे, पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से, देयर इज नो सच एरिया एट ऑल। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही स्टूडेंट जाएगा तो एक हमारी अपनी बैच, लाइक मैं यस 16 का हूँ, आई वेंट इन 2018, तो हमारे केपी के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे, ऐसा कोई नहीं है। then is there any specific syllabus? मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया कि सिलेबस तो खैर कुछ नहीं है, बट यस आपका एक चीज है, वो ये है कि यू यू जस्ट नीड टू बी बेटर एट इंग्लिश लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग। इफ यू आर गुड इनफ कि अगर आप अपनी बात कन्वे कर सकते हो, यू आर गुड टू गो। कैन वी अप्लाई ऑनलाइन? अब ऑनलाइन का मतलब क्या है कि ऑफकोर्स जो पहली आपने एप्लीकेशन फिल की थी, जिसकी जिसके बाद आपको सारा फॉर्म जो दैट आई एम अबाउट टू पुल अप, तो वो आपका आपने ऑनलाइन किया था, राइट? बट वंस आपके पास वो फॉर्म आ जाता है, आप उसको डाउनलोड करोगे एंड देन यू विल फिल इट विद योर ब्लैक पेन। ये लिखा भी, जब व्हेन आई पुल अप द फॉर्म, मैं बताऊंगा, लाइक यू हैव टू फिल इट अप विद योर पेन, हार्ड, ऑफ कोर्स हार्ड कॉपी होगी, एंड देन यू हैव टू कोरियर इट, मतलब आप टीसीएस कर दोगे उसको। इज देयर स्पेसिफिक सिलेबस? मैंने ऑलरेडी बता दिया। कैन 8th क्लास स्टूडेंट? नहीं नहीं, 8th क्लास के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। ओनली द स्टूडेंट ऑफ 9th एंड 10th ग्रेड जो करंटली एनरोल्ड है वो कर सकते हैं या कर सकती है। कैन आई अप्लाई इफ आई एम 14 ईयर्स ओल्ड? सी, अगर आप 15 अगस्त 2025 नेक्स्ट ईयर तक अगर आप 14 ईयर्स के हो, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर आप नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त तक अगर आप 15 के हो जाते हो, देन यू आर गुड टू गो, आप अप्लाई कर सकते हो। वी हैव गेट आवर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड फ्रॉम एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, देखिए, अब इसमें अटेस्टेशन का मतलब क्या था? अटेस्टेशन का मतलब ये था कि जो आपकी रिजर्व, मतलब कंसर्न जो अथॉरिटी है आपकी, दैट व्हाट आई मेंट वाज, कि जो आपके प्रिंसिपल हैं, ठीक है, आपके स्कूल के जो भी अगर हैं, आप एज फीमेल और मेल जो भी हैं, आप उनसे अटेस्टेशन करवाएंगी। 17 18 ग्रेड का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप अपने प्रिंसिपल से अटेस्टेशन करवाएंगे यहाँ पे। ओके, व्हेन द टेस्ट विल बी कंडक्टेड? राइट आफ्टर योर शॉर्टलिस्टिंग। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, फिर उसके बाद इट टेक्स सम टाइम इन शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस, फिर आप हो जाओगे। हाउ टू फिल फॉर्म ऑनलाइन? आप ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करते हो, यू जस्ट टेक जो भी अभी आप फॉर्म है आपके पास, आप उसका प्रिंट आउट लेते हो एंड देन यू फिल इट आउट। which state test will be conducted? दोस्त,
राइट नाउ आई कैन नॉट से दैट, मुझे भी नहीं पता टेस्ट कब कंडक्ट होगा। तो अगर आप सी, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी आपका टेस्ट का वो है ही नहीं ना, मतलब अ, अभी टेस्ट इज नॉट योर हेडेक। ये जो फॉर्म है ये बहुत बड़ा हेडेक है आपके लिए। व्हाई एम आई सेइंग दैट? इट्स बिकॉज के आई एम अ कैडेट, आई वेंट टू कैडेट कॉलेज भोटी, तो वी वर 20 35 स्टूडेंट्स, 35 कैडेट्स दैट अप्लाइड फ्रॉम आवर बैच। हमारी बैच में 35 कैडेट्स ने अप्लाई किया था, एंड गेस व्हाट, कितने शॉर्टलिस्ट हुए होंगे? ओनली 5। सिर्फ 5 लड़के हम शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिनका जिनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया था। 5 लड़कों के बाद फिर जाके हम 2 लड़के फाइनलिस्ट हुए थे। तो ये जो फॉर्म हम बात करेंगे अभी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So do you just want me to go to okay, do you just want me to go to the application form or what? If you can go through that, it will be really helpful. Just to give a little Sure. bit intro about the sections. Yeah, okay, here we go. Okay, so uh, ये वो चीज है कि आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस। ये जो फॉर्म है, प्लीज डो नॉट टेक इट लाइटली। इट्स बिकॉज के इट्स अ टिकट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। जो आपका ब्राइट फ्यूचर दैट इज वेटिंग फॉर यू, उस चीज का टिकट है। तो इसको प्लीज लाइटली मत लेना। ये आ, मतलब इफ यू आर लकी इनफ तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। और प्लीज इसको लाइट मत लेना, नॉट टेक इट एज अ जोक, ये मजाक चीज नहीं है। बिफोर वी बिगिन, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये होगा कि जो भी चीज आप उसमें लिखते हो ना, जो भी चीज, वो ट्रुथफुल होनी चाहिए, वो सच्ची होनी चाहिए। Why? It's because कि, see, if I take my example, like nobody knows me better than myself, right? Nobody knows you better than yourself. इंसान को खुद से बेहतर कोई भी नहीं जान रहा होता। तो इसीलिए जो फॉर्म है वो प्लीज खुद फिल करें और सच्चा फिल करें। लेट्स गो। अब यहाँ पर हमारे पास है कि लास्ट फैमिली नेम, फर्स्ट नेम। मेरा नाम है जैसे अवैस अहमद, तो अहमद होगा तो वो मेरा यहाँ पर लास्ट नेम जाएगा। फर्स्ट नेम मेरा अवैस, मिडिल नेम मेरा कोई नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा इसको। जेंडर मेल, एज ऑफकोर्स अगर आप हो तो 15, ठीक है, और या फिर 17 के बीच में। और डेट ऑफ बर्थ में आप क्या करोगे कि डी डी एम एम वाई वाई। इट मीन्स के आप यहाँ पर क्या करोगे? अब जैसे मेरा है, मैं यहाँ पर लिखूंगा 10/02/02, ठीक है। सिटी ऑफ रेजिडेंस सखर, जहाँ आप रहते हो। कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान। सिटीजनशिप, अगर आपके पाकिस्तानी के अलावा कोई है तो आप वो लिखोगे, यहाँ पर आप पाकिस्तानी ही लिखोगे। अब स्कूल सिटी, जिस स्कूल से आप जिस सिटी में आपका स्कूल है आप वो लिखोगे। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखोगे। एंड देन ऑफ कोर्स आपकी जो क्लासेस हैं वो आप इनसर्कल करोगे। ये बेसिक, बहुत बेसिक्स है। अब फॉर्म एम क्या होता है, ये विल कम ऑन इट लेटर ऑन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या चीज होती है फॉर्म एम। टीचर रिकमेंडेशन फॉर्म, ये फॉर्म 4 है, हम इस पर भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज थी, इज स्कूल ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूडेड। अब ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या है? जो आपकी मार्कशीट है उसको आप ट्रांसक्रिप्ट कह रहे होते हो। अब कौन सी मार्कशीट? जो ऑलरेडी मैंने डिफाइन की हुई थी आपको कि जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन वाली है। अगर आप 9th में हो तो 6th 7th एंड 8th। और अगर आप 10th में हो तो फिर आपका 7th 8th एंड 9th। ये आपने यहाँ पर करना है। or if you have participated in English Access Micro Scholarship Program, encircle yes. If no, then no. यहाँ पर रीड एंड इनिशियल है, स्टूडेंट इनिशियल्स। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ऑफकोर्स। अब इनिशियल्स क्या होते हैं? जैसे मेरा नाम है अवैस अहमद, तो फिर मेरा क्या होगा? ए, ठीक है। मेरा यहाँ पर ए मेरे इनिशियल्स हैं। तो अगर आपका जो भी नाम है, ठीक है, तो फिर आप उसके हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो आपके इनिशियल्स में आप यहाँ पर वो लिखोगे। यस, राइट योर यूएस होस्ट फैमिली अ लेटर। आप अपनी होस्ट फैमिली को लेटर लिखोगे।
अब क्यों भाई, ठीक है, इट्स बिकॉज मैंने आपको ये बताया कि यू गो एंड स्टे विद योर अमेरिकन होस्ट फैमिली, आप उनके साथ जाके स्टे करते हो। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर फैमिली, व्हाट एक्टिविटीज डू यू एंजॉय डूइंग टुगेदर, व्हाट आर योर रिस्पांसिबिलिटीज एट होम। अब यहाँ पर इंट्रो आप अपना कराओगे, इट मीन्स के अगर मैं हूं तो मैं बोलूंगा अवैस अहमद, I'm अवैस अहमद, ठीक है, आई स्टडी इन, अब लाइक उस टाइम तो ऑफकोर्स मैंने बोला था आई स्टडी इन 10th ग्रेड, ठीक है, आई गो टू कैरेट कॉलेज भुटकी, ठीक है। तो उसके बाद मेरी फैमिली में इतने इतने सिबलिंग्स हैं, और मेरी अम्मी ये करती हैं, मेरे बाबा ये करते हैं, तो आप फैमिली के बारे में बता दिया आपने। कौन सी एक्टिविटीज, ऑफकोर्स इट वेरीज फ्रॉम फैमिली टू फैमिली, कोई फैमिलीज क्या एक्टिविटीज करती है, कोई क्या करती है, जो भी आपकी फैमिली एक्टिविटी करती है, बी ट्रूथफुल अगेन, बी सच्चा, ठीक है, आपने वो लिखना है यहाँ पर। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी हैं आपकी अपने घर में, तो आप वो यहाँ पर लिखोगे। देन फिर यहाँ पर डिस्क्राइब योर इंटरेस्ट्स। हर इंडिविजुअल, देयर इज वन थिंग कॉल्ड इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि जो भी इंडिविजुअल है उस सबका अपनी एक अलग अलग पर्सनालिटी होती है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, कि हर इंसान डिफरेंट है। तो यहाँ पर इन दैट वेरी वे सबके जो इंटरेस्ट होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, राइट। आप अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखोगे, एंड अगेन बी ट्रुथफुल। वाई, इट्स बिकॉज कि जो आप यहाँ पर लिखोगे, जैसा लिखोगे आपके लिए वैसी होस्ट फैमिली वहां पर चूज होगी। सो बी ट्रुथफुल। टेल अबाउट योर फ्रेंड्स, व्हाट एक्टिविटीज डू यू लाइक टू डू टुगेदर। अपने दोस्तों के बारे में बताओ, क्या, इसका मतलब ये है कितने आप लोग दोस्त हो, और क्या एक्टिविटीज आप लोग साथ अपने करते हो, कौन सी एक्टिविटीज आपको करना पसंद है। और फिर राइट 2 or 3 sentences to describe your city. The city there you live, you do not have to mention the name of your city, but आप 2 से 3 सेंटेंसेस में आप बता दोगे कि आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल स्मॉल टाउन, ठीक है, या अर्बन, जो भी आप जहाँ पर रहते हो आप वो बताओगे। और आपकी सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या नहीं है, तो वो बताओगे आप। व्हाट प्लान्स इफ एनी डू यू हैव फॉर योर फ्यूचर एंड करियर। इसका मतलब ये है कि आपके जो फ्यूचर है आपका, आप उसके बारे में आप क्या, मतलब आपका लाइफ गोल क्या है, एम इन लाइफ जिसे हम लिखते थे, तो आपका एम इन लाइफ क्या है, आप वो चीज यहाँ पर बताओगे। और फिर उसके बाद व्हाट एल्स डू यू वांट योर होस्ट फैमिली टू नो अबाउट यू। इन सब चीजों को डिफाइन करने के अलावा और क्या चीजें हैं कि जो आपकी होस्ट फैमिली को आपके बारे में पता होनी चाहिए। व्हाई, इट्स बिकॉज अगेन ऑल व्हाट आई एम इंसिस्टिंग ऑन इज कि जो आप लिखोगे आपको वैसी फैमिली एलोकेट होगी। फिर उसके बाद व्हाट वुड यू लाइक टू गेन फ्रॉम योर एक्सचेंज ईयर। अब इसका मतलब क्या है कि आपका पर्पस क्या है, वाई आर यू गोइंग टू द यूएस, आप यूएस क्यों जाना चाह रहे हो, और आप उससे क्या हासिल करना चाह रहे हो, तो आप वो चीजें यहाँ पर लिखोगे। और देन वी हैव ऑफ कोर्स फॉर्म 2 एज वेल। द बॉटम लाइन इज बी ट्रूथफुल। मैं बार बार ये, अब आई बी रीट्रेटिंग इट थ्रू आउट दिस एप्लीकेशन प्रोसेस। बी ट्रूथफुल, बी ट्रूथफुल, बी ट्रूथफुल। फिर हमारे पास है लिस्ट स्कूल और अदर क्लब्स ऑर्गेनाइजेशंस यू बिलोंग टू। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो ये है कि आप क्या करते हो यहाँ पर, जितनी भी एक्टिविटीज आपने की हुई है ना, जो आपने खुद की हुई है, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखोगे। इट मीन्स के आप यहाँ पर वो नहीं करोगे, व्हाट डू यू कॉल इट, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखोगे, ऐसे फॉर्म में नहीं लिखोगे, बट आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ लिखोगे, जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है बास्केटबॉल नेशनल डांसिंग लेसन। तो ऐसे ही आप लाइक कॉलम वाइज, या फिर जैसे हमारे पास रो वाइज, पहली रो दूसरी रो, आप ऐसे अपनी जॉट डाउन करोगे, आप कितना ऑफन करते हो उस चीज को, उस एक्टिविटी को, फिर आप वो चीज लिखोगे। एंड देन ईयर्स ऑफ एक्टिविटी, कि आपने किन किन सालों में किन किन सालों में ये चीजें की हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट एक्टिविटी इज योर फेवरेट एंड व्हाई। क्यों, इसको ये क्वेश्चन क्यों है और इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल है, कि they just want to see your माइंड सेट, कि आपका माइंड सेट क्या है, कैसा है, तो उसके बारे में है ये, कि आप कौन सी एक्टिविटी एंजॉय करते हो और क्यों, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ यू स्पेंड योर फ्री टाइम
explain what you do, why you enjoy it, and with whom you do it. अब इसका मतलब ये है कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं कि जो आप अपने फ्री टाइम में करते हो। अब हर किसी का अपना डिफरेंट फ्री टाइम होता है। Someone likes to spend it with their family. Somebody likes to play like Xbox. Someone likes to read. Someone likes YouTubing. Uh, Someone likes to do some scientific stuff. Someone likes to play computer games. आप वो चीजें यहाँ पर लिख सकते हो। Are there any activities you're interested in trying in the US? अब यहाँ पर दो चीजें हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज के जो आप यूएस में ट्राई करना चाह रहे हो, जो यूएस में ऑलरेडी हैं, आप वो चीज लिखोगे। और कुछ ऐसी चीजें कि जो आप पाकिस्तान में कर रहे हो और आप वही सेम चीजें वहां एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो। अब इसके लिए अब हमें तो नहीं पता कि यार यूएस में कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। वेरी सिंपल थिंग इज गूगल इट। गूगल करो उस चीज को और फिर आप देखो कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं हैं। अब हमारे जब हम when I was filling the form, हमारा ये क्वेश्चन था कि what foods do you want to enjoy or do you want to experience in the US? And believe you me, I had no idea what is American food. And I'll be very honest to you, American में कोई अपना food नहीं होता। ठीक है। There's no such food, there's no such American food। कोई American food नहीं है, उनकी अपनी कोई cuisine नहीं है। ठीक है। So that's just a bummer, I guess। Of course, achievements, awards, leadership positions, अगर कुछ भी है आपके, आप हेड बॉय बन गए हो, आप हेड गर्ल बन गए हो, आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गए हो, आप वो चीज लिखोगे। एक्सचेंज प्रोग्राम्स, अगर आप कभी एक्सचेंज प्रोग्राम्स में गए हुए हो ऑलरेडी तो आप वो लिखोगे। अब रिकमेंडेशन फ्रॉम टीचर दो चीजें हैं। अब जो आप फिल कराओगे किससे कराओगे? आप उस बंदे से कराओगे, उस टीचर से कराओगे स्पेसिफिकली, हु नोज यू रियली वेल, जो आपको अच्छे तरीके से जानते हो या जानती हो। व्हाई? इट्स बिकॉज के ही और शी इज गोइंग टू असेस यू विद दीज ट्रेट्स। ठीक है। जितने भी ट्रेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उन सब से वो आपको असेस करेंगे। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उन चीजों से ही करो, मतलब उसी बंदे से कराओ कि जो जिसे पता हो ये सारी चीजें। तो उसके बाद दो चीजें हैं, मैंने ऑलरेडी बोला, एक वो जिसको इंग्लिश आती हो, एक वो बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती। टीचर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर आपकी टीचर को इंग्लिश आती है गुड टू गो, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी टीचर को इंग्लिश नहीं आती, यू आर गुड टू गो टू, फिर भी मसला नहीं है। अब वो कैसे होगा? अगर आपकी टीचर को इंग्लिश नहीं आती तो फिर क्या होगा? वो किसी और के साथ बैठेंगे, सिंधी या उर्दू में वो बताएंगे, एंड देन वो ट्रांसलेट होगा इंग्लिश में। और यहाँ पर जो ट्रांसलेटर होगा उनकी स्टेटमेंट और फिर उनके सिग्नेचर होंगे और उनका नाम होगा। दैट्स इट। तो इट डजेंट मैटर। डू नॉट थिंक कि यार मुझे तो सिंधी वाले टीचर अच्छी तरीके से जानते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली ही और शी डजंट नो इंग्लिश। इट्स फाइन। They can just state that in Sindhi and then some proficient guy in English or girl in English, so he or she can translate it for that individual और फिर वो अपने यहाँ पर नाम लिख सकती हैं, लिख सकते हैं। बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जो आपकी है। यहाँ पर मेजरली इशू आता है एक चीज के बारे में और वो होता है ईमेल। अगर आप ईमेल नहीं है, इट्स फाइन। डू नॉट थिंक कि यार मेरी ईमेल तो नहीं है तो मे बी सिलेक्शन ना हो मेरी। देयर इज नो सच थिंग, देयर इज नो सच थिंग एट ऑल। अगर आप ईमेल नहीं है, यू आर गुड टू गो, कोई बड़ा मसला नहीं। जस्ट राइट NONE, नन। फिर फैमिली है, अम्मी और बाबा के बारे में आप वो लिखोगे। अगेन अगर ईमेल नहीं है, इट्स फाइन, राइट नन। तो अगर ये नहीं है कि अगर आपके बाबा की, अम्मी की, और अगर आपकी ईमेल नहीं है, आपके चांसेस नहीं है। अगर है तो चांसेस हैं। देयर इज नो सच थिंग एट ऑल। ये सिर्फ सोलली मेरिट पर है, ये सारा जितना भी है आपका प्रोग्राम है। और स्पेसिफिकली एक और चीज वो ये कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स, देयर इज नो सच थिंग इन दिस प्रोग्राम एट ऑल। यू आर फ्री टू डू। ठीक है, आप कर सकते हो। इसीलिए ये जो प्रोग्राम है वो आपकी स्टेटस को नहीं देखता, बैकग्राउंड को नहीं देखता। इट जस्ट सीज द मेरिट, सिर्फ मेरिट को देख रहा होता है। और स्कूल इन्फॉर्मेशन, ऑफकोर्स आपका अपना स्कूल है, आपको ज्यादा पता होगा। प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर आप बताओगे डिस्क्राइब अ टिपिकल डे इन योर लाइफ, जो मोस्ट प्रोबेबली हमारा वीकेंड्स पर होता है, संडे के दिन होता है। तो आप उसको डिफाइन करोगे कि आप संडे वाले दिन क्या करते हो, कैसे करते हो, uh, और क्यों करते हो। ठीक है। तो दीज थिंग्स, मतलब क्या क्या चीजें आप कर रहे होते हो, जस्ट टू बी प्रिसाइज, क्या क्या चीजें आप कर रहे होते हो।
हैव यू एवर बीन टू द यूएस? अगर आप गए हो तो यस, नहीं तो फिर नहीं। ठीक है। और अगर आप किसी और कंट्री में गए हो, मोस्टली वी यूज लाइक वी ऑफन गो टू परफॉर्म पिलग्रिमेज। हम सऊदी जा रहे होते हैं या फिर हम ज़ियारत करने जा रहे होते हैं ईरान इराक, तो वो चीजें हैं। अब वो अगर आप गए हो तो ठीक है, अगर नहीं गए इट्स फाइन, इट्स फाइन। इट डजेंट मैटर कि यार मैं तो नहीं गया हुआ, मैं तो नहीं गई हुई, तो सिलेक्शन नहीं होगी मेरी। देयर इज नो सच थिंग, क्योंकि मैं भी नहीं गया हुआ था। ठीक है। तो व्हाट आर योर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आपकी घर में क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? मतलब ग्रोसरीज लेके आना, और फिर उसके बाद खाना बनाना, टेक केयर ऑफ बेबी सिट, जिसे हम कहते हैं बेबी सिटिंग, जो छोटे भाई बहनों का ख्याल करना, वो चीजें। अच्छा, यहाँ पर ना एक एक बहुत बड़ी चीज है यार, कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन एवरेज स्टडिंग एट होम ईच डे? यहाँ पर काफी ये समझते हैं कि अगर हम ज्यादा टाइम लिखेंगे ना, लाइक 4 to 5 आवर्स, तो हमारे चांसेस ज्यादा हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दे डू नॉट सी योर अकेडमिक्स, बट ये 60% आपको होना चाहिए। अगर आप लिखते हैं ना ए 1 आवर, यू आर गुड टू गो। अगर कोई लिखता है 5 आवर्स, यू आर गुड टू गो टू। लाइक 1 आवर और 5 आवर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऑफकोर्स ये फिर आपकी थोड़ी वो है कि जो आपके सिटी के बारे में है, फिर आपकी अपनी फैमिली के बारे में है, जो आपको ज्यादा पता है ऑफकोर्स। यहाँ पर एक चीज है कि डू यू नीड अ स्पेशल प्लेस फॉर प्रेयर? अब जो मुस्लिम्स होते हैं वो जाए नमाज होनी चाहिए होती है, और वो जगह भी पाक होनी चाहिए। आई मीन आई रिमेम्बर when I went to my host family, so I requested them कि the place where we pray, dogs are not allowed, because that place needs to be pious. That place needs to be clean, which is why we do not allow dogs specifically to enter in that area. And they respected me. उन्होंने रिस्पेक्ट किया, बिलीव यू मी। द डॉग, द आई डोंट नो इफ यू सी दैट पिक्चर विद द होस्ट फैमिली, देयर वाज अ स्मॉल डॉग नेम्ड केसो, ही वाज देयर टू। ही नेवर एंटर्ड इन माय रूम, नेवर। कभी भी मेरे रूम में एंटर नहीं हुआ था वो। यस, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द लिविंग रूम, तो वहां पर था, मैं उसके साथ खेलता भी था, बट ही नेवर केम इनटू माय रूम एट ऑल। तो दे रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी अ लॉट। एलर्जीज अगर आपको हैं तो आप वो बताओगे। मेडिकेशंस अगर आप हैं वो बताओगे, मेडिकल रूटीन केयर वो बताओगे, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, ऑफ कोर्स रिलीजियस एंड अदर रीजंस, ऑफ कोर्स बेसिक थिंग है हलाल फूड। ठीक है। और अगर कोई वेजिटेरियन है हमारे पास, तो वो बस यही लिखेगा वेजिटेरियन, सिंपल। अगर आप स्मोक या वेप करते हो, पहली बात तो ये कि इट डजेंट मैटर अगर आप स्मोक करते हो, एंड इफ यू राइट कि हाँ मैं करता हूँ, तो डू नॉट थिंक कि यार मतलब मेरे चांसेस नहीं है। अगर आप वेप करते हो या करती हो, ठीक है, दैट डजेंट मैटर। बट एक चीज है, बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि इवन स्मोक और वेप वहां पर आपको अलाउ नहीं होगा। अगर आप नहीं करते तो जस्ट राइट नो। और क्या आप उस घर में कंफर्टेबल हो कि जब स्मोकिंग होती है? तो आई मीन आई एम नॉट। तो इसलिए फिर मैंने नो कर दिया था। फॉर्म एम के बारे में ऑलरेडी मैंने बोला हुआ था, वो क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 में अगर जो भी आप चीजें आंसर करोगे यहाँ पर, वो सर आपका फॉर्म एम है। और वो कौन देगा आपको? डॉक्टर देगा, डेफिनेटली। नाउ दैट डॉक्टर कैन बी फ्रॉम अ प्राइवेट डॉक्टर या गवर्नमेंट डॉक्टर, इट डजंट मैटर, प्राइवेट हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, आप जहां से भी निकलवा लो बस। ये 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, वो आपका फॉर्म एम है। वेरी सिंपल। सही है। पेरेंट स्टूडेंट एग्रीमेंट, अब ये सारा पेरेंट्स के लिए है, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया गया हुआ है कि ड्यूरिंग एक्सचेंज ईयर आपके जो चाइल्ड हैं, ठीक है, आपकी बेटी, आपका बेटा, योर सन और योर डॉटर, व्हाट आर दे एक्सपेक्टेड टू डू, वो क्या क्या चीजें करेंगे, और पूरा प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ है कि जर्नी उनकी कैसी होगी एंड व्हाट नॉट। ये सारा पेरेंट्स के बारे में है। एंड लास्ट में उनके सिग्नेचर्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर उनके सिग्नेचर्स हैं। अब यहाँ पर एक इन द मॉर्निंग दैट सेशन दैट आई वाज डूइंग, आई वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन कि सर अगर पेरेंट्स हमारे दे आर नॉट लिटरेट इनफ टू साइन देयर नेम, तो इट्स फाइन। आई मीन सिंधी सिंधी तो आती होगी ना, या उर्दू तो आती होगी ना, वो उर्दू में या सिंधी में अपना नाम लिख सकते हैं। दैट्स वेल इनफ। वो भी सही है, कोई बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ उन्होंने यहाँ पर अपना सिंधी या उर्दू में या इंग्लिश में जो भी है वो कर देंगे, कोई बड़ा मसला नहीं। स्टूडेंट डिक्लेरेशन एंड एग्रीमेंट,
तो आपका मतलब हमारे स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर सिग्नेचर्स होंगे, फोटोग्राफ्स, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग। अब यहाँ पर क्या है कि आप के दो फोटोज होंगे यहाँ पर, कौन से, एक आपकी फैमिली के साथ, दूसरा आपके दोस्तों के साथ। तो आई वाज शोन अ फोटो, वन ऑफ लाइक समवन सेंट मी, उसमें देयर वाज ग्रुप, लाइक पूरी क्लास खड़ी हुई थी। एंड देन दैट अंकल सेड कि अवैध बेटा ये भेज दो अपने बेटे के लिए। आई मीन सी, पहली बात तो ये कि पूरी क्लास आपकी दोस्त नहीं है, राइट? दोस्त आपके 3 से 4 होते हैं, मैक्स 5 होते हैं, तो आप उनके साथ फोटो लोगे विद स्माइलिंग फेस, एवरीबडी मस्ट बी स्माइलिंग जस्ट लाइक द वे शी इज स्माइलिंग। और फिर उसके बाद जो आपकी फैमिली के साथ फोटो है वो भी विद ब्राइट स्माइल, लाइक एवरीबडी मस्ट बी स्माइलिंग। और उसके बाद जो आप फोटो सेंड करोगे, उसके उसके बारे में आप लिखोगे यहाँ पर कि फोटो मतलब क्या है, आ, आ, इसको डिस्क्राइब करोगे कि मतलब कब खींचा था आपने। और फिर उसके बाद आप अपने बारे में बताओगे कि मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं कहाँ पर खड़ी हुई हूँ, और ये बताओगे आपकी एज क्या है इस टाइम पर। नॉट ओनली दैट, आप वो जब वंस यू आर डन विद दैट एप्लीकेशन, आप वो एनवलप में डालोगे और फोटोज पे एनवलप में डालोगे, नंबर वन। नंबर टू, आप ये चीजें ईमेल भी करोगे। कैसे? जो जिस ईमेल पर आपको ये फॉर्म रिसीव हुआ था, आप उसी ईमेल पर वो भेज दोगे। कैसे? लास्ट नेम फर्स्ट नेम करके, लास्ट नेम फर्स्ट नेम करके, इस फॉर्मेट में आप भेजोगे। प्राइवेसी पॉलिसी स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स, अब ये एक चीज होती है जिसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी कहते हैं, एनडीए कहते हैं। तो ये काइंड ऑफ वही चीज है। तो सिग्नेचर आपने करनी है, और फिर उसके बाद परमिशन फॉर केयर ऑफ माई चाइल्ड। इट जस्ट मेक श्योर कि पेरेंट्स ने हमें परमिशन दे दी है कि यस, आई एम हैंडिंग ओवर माई सन माई डॉटर टू यू, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ हिम एंड हर थ्रू आउट दैट एक्सचेंज ईयर। तो ये सिर्फ पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म है, वो साइन करने होते हैं। पार्टिसिपेंट कंसेंट एंड रिलीज फॉर्म, वो पार्टिसिपेंट कर रहा होगा या कर रही होंगी, ठीक है, वो अपना सिग्नेचर्स कर देंगे। अब ये है बॉटम लाइन, अगेन 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 अगेन, बॉटम लाइन हमारे पास एक ही है, और वो यही है कि हमारे पास बी ट्रुथफुल, बी ट्रुथफुल, बी ट्रुथफुल। इफ यू आर ट्रुथफुल इनफ, तो फिर आपके पास मसला नहीं होना चाहिए। आप ट्रुथफुल हो आप, तो उससे मसला नहीं होना चाहिए, और ट्रुथफुल आपने रहना है। तो यस करण, दैट वाज इट, लाइक विद दिस, जो भी सेशन था हमारा। अब आई हैव रिसीव्ड सम क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आंसर। अच्छा करण, इट सेज कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या ये सेशन यूट्यूब पे अपलोड होगा? सो व्हाट्स द प्लेटफॉर्म वेयर यू गाइस आर, बिकॉज़ अली भाई टोल्ड मी कि यू आर गोइंग टू अपलोड दिस समवेयर, आई डोंट नो। Yeah, Wes, we are recording this session and will be uploaded on YouTube. There's a channel with the name of organization, Sindh Educational Organization SEO. So we will be uploading ओके the session there. ओके, सो सादिया, आई डोंट नो इफ शी इज हियर स्टिल, बट यस, अगर आप हैं तो ये जो सेशन है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पर, अभी बताया करण ने। एंड देन वी हैव, कैन यू प्लीज answers to my question on WhatsApp? What? I mean, if you have any questions, you can just ask them right away. आप अभी पूछ सकती हैं यहाँ पर। Where can I find the form? आपको फॉर्म अभी तक नहीं मिला? एक मिनट। Hello, Wes. You can also share the link in the Yeah, chat box. That will be for everyone. यार, I'm actually looking for that specific link. मैं अभी वहीं पर फेसबुक मैंने खोला हुआ है, मैं शेयर कर देता हूँ उसमें। Okay. ओके ओके, सो आई हैव शेयर्ड द लिंक विद यू गाइस। ये आप अपनी लिंक पर जाओगे, आप क्लिक करोगे, एंड देन बिल्कुल बॉटम पर लास्ट में होगा अप्लाई। ये मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में आपको भेज दिया लिंक, ठीक है, सही है, ये मैंने ऑलरेडी भेज दिया है आपको यहाँ पर। तो लिंक ऑलरेडी आपके यहाँ पर आ चुकी है, तो आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे,
आप बिल्कुल लास्ट में जाओगे एंड देन लास्ट में जो है ना आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म ओके ईशा, आई ऑलरेडी सेंट इट, कैन यू राइट आवर कंट्री नेम इन फॉर्म? देखिए अब ये जो है ना आपने ऑनलाइन फिल नहीं, आई थिंक आपका क्वेश्चन यही है मे बी, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना है। इकरा डू लेट मी नो अगर मेरा क्वेश्चन अगर आपको सही समझा है तो। मुझे लग रहा है आप ये पूछ रहे हो कि हम ऑनलाइन फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन डेफिनेटली आप नहीं फिल कर सकते, आप उसको प्रिंट करोगे एंड देन फिर आप अपने कंट्री का नाम लिखोगे क्योंकि वो पूछ रहा है आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो उसके बाद फैमिली नेम में कास्ट नहीं लिखनी क्या? नहीं सर्वर भाई, फैमिली नेम में आपने कास्ट नहीं लिखनी। व्हेन वी हैव नो लास्ट देन व्हाट शुड वी डू? अच्छा, अगर आपका लास्ट नेम आई थिंक अगर आप पूछ रहे हो, लेट्स जस्ट से कि अगर मेरा नाम अवैस है, ओनली अवैस है, तो मेरा फर्स्ट नेम अवैस है, मैं लास्ट नेम साइड पर कर दूंगा और मिडिल नेम भी साइड पर, मतलब आई लीव दैट ब्लैंक। मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा वहां पर, सिर्फ अपना नाम लिखूंगा अवैस फर्स्ट नेम की जगह पर, मिडिल नेम भी छोड़ दूंगा और लास्ट नेम भी छोड़ दूंगा। send us link of YouTube channel. I think Karan यार send the YouTube link in the chat box to सर। इस टेस्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए? अच्छा सादिया सी, इसमें मैंने ऑलरेडी आई थिंक ये बताया भी सही कि इसमें क्या है हमारे पास कि कोई सब्जेक्ट्स नहीं है आपके, यू जस्ट नीड टू बी गुड at understanding, speaking, and listening English. That's it. I mean, I would like to put my example कि once जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो I was asked a question in English और I couldn't answer that in English. I was stammering, like मैं अटक रहा था बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो तो yes head थी मैम, तो she said कि वैसे it's fine, आप उर्दू में बात कर सकते हैं। तो आई स्पोक इन उर्दू वहां पर। मुझे ये चांस इसलिए मिला था बिकॉज कि मैंने ऑलरेडी रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ था जो कि अभी खत्म हो चुका है। तो दे हैड एन आइडिया कि यस ही हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, तो ही विल बी गुड टू गो। कैन यू सेंड द फॉर्म ऑन व्हाट्सएप? तो अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिंक भेज दी है। काइंडली प्लीज ये फिर से थोड़ा फॉर्म को एक्सप्लेन कर दें कि डिटेल कौन कौन सी देनी है और सर टेस्ट के लिए कौन से पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें क्या Always. होगा कि Hello. या You या या had talked a lot about this application form. So if anyone wants to go through again, we'll be uploading this session. So I think we should leave this question. श्योर, आई मीन आई ऑफ कोर्स मैं भी यही बोलने वाला था, बट जो दूसरा पार्ट है मैं सिर्फ वो जवाब देने वाला था। Okay. वो ये था कि कौन सी, अच्छा एक सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं? नहीं यार, सारे सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़ने, आपने सिर्फ आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश रीडिंग, सॉरी लिसनिंग एंड स्पीकिंग बेहतर होनी चाहिए। कैन वी राइट आवर कंट्री नेम? अच्छा, ऑफ कोर्स इट्स बिकॉज कि आप जा रहे हो यस पाकिस्तान के, इट मस्ट बी ऑन द बेट, ऐसे ही होगी कभी। लाइक आप यस पाकिस्तान की तरफ से जा रहे हो तो आपने अपने कंट्री का नाम लिखना है फॉर श्योर। सेंड अस लिंक ऑफ योर यूट्यूब चैनल। ओके ओके, आर देयर एनी क्वेश्चंस लेफ्ट कि जो मैंने आंसर ना किए हों? No, no, always. All the questions which were asked in the chat are answered. Guys, still, if anyone of you have confusion, please raise your hand or type your questions in the chat box. Always is here. He will be answering your questions. नहीं, एट क्लास के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली नाइन्थ और टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। Okay, always. I think we should end our session here. Thank you so much for being here and giving us your time for this informative session. It was really helpful for all the aspirants of YES program. And thank you so much. I hope so they may make it. I mean, it was a pleasure. So, yes, that's it. Okay, Khuda Hafiz everyone. Allah Hafiz.